Okay. So we do an experiment to study the effect of change of temperature on matter. So I told you that first we take some ice cubes in any pot, we fix a thermometer inside that pot to take the reading of temperature, and we start heating the pot. We notice that as the temperature increases, okay, the ice which is at what temperature, it is at 0 degree or less than 0 degree. So when we start heating the pot, the temperature comes to 0 degree and increases, and the ice starts melting, and ice gradually converts into water. So we take that reading of temperature when ice is converting into water. Then we let the pot get heated, and after some time its temperature increases much more. The water starts boiling. The water starts boiling, and then we see the formation of steam. We see the formation of steam. The steam starts forming up when water starts boiling, and it starts coming out from that pot. So we take that temperature of water. Okay. So now what happens, that you know from our basic knowledge of science that matter is made up of particles. Every matter is made up of some kind of particles. Okay. In last class I had explained you कि anything if you break it, it will keep breaking in smaller and smaller particles. Okay, if you have the capacity, you can break it even if it becomes very small, much small to be seen. Even under microscope, it will appear large. If you have such technology, you can break it. It will keep breaking. So we know that matter is made up of particles, that we have already known. Now when we heat anything, any matter, these particles, they start vibrating. Okay, their kinetic energy, you know what is kinetic energy? The energy possessed due to motion. Energy possessed by a body due to its motion is called kinetic energy. So the kinetic energy of these particles, it increases. It increases. काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगा? तो स्पीड बढ़ जाएगा, मास तो नहीं चेंज होगा हीट करने पर, तो नेचुरल है स्पीड बढ़ेगा. So the velocity of these particles increases and its kinetic energy increases. So like I had explained you the three states of matter with the example of boys sitting in a class. So we had compared the solid state like a class with student at every desk completely packed, or maybe there is some space, a little space. Then we compared liquid to a class with students with some benches empty in between them. Okay. And we compared gas as class with students at corners, means leaving too many vacant benches or desks in between them. Okay. So I told you that in solid, when there is the students are sitting quite near, there is very little space or no space. If you go to big private schools, there will be some space between them. If you go to government school or very ordinary school, there you will find children are sitting shoulder to shoulder, no space between them. Okay. So
बोथ ऑफ देम आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स। थोड़ा स्पेस हो सकता है या बिल्कुल ही चिपक के हो सकते हैं। सो इन सच केस विल द स्टूडेंट हैव मच फ्रीडम टू मूव अबाउट? नो, दे डोंट हैव एनी स्पेस, है ना। अगर गवर्नमेंट स्कूल में जाइएगा पैक रहेंगे तो वहाँ तो टकराते रहेंगे एक दूसरे से, जगह ही नहीं रहेगा। प्राइवेट स्कूल में जाएंगे थोड़ा सा जगह रहेगा, कंधा इधर उधर कर सकते हैं, थोड़ा मुड़ सकते हैं। ओके, सो सेम इज द केस ऑफ सॉलिड। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, I had explained you in last class that the particles of matter are attracted by a force. They are kept together by a force of attraction. So that force, it is quite strong in case of solids. Solid के केस में ये जो force होता है attraction का काफ़ी strong होता है, तो वो जरा भी उसको हिलने डुलने नहीं देता है। हाँ, I will. In case of liquids, the force is weaker, so they can move about. एक दूसरे से गप करने के लिए आ जा सकते हैं, फिर अपनी सीट पर बैठना होगा। सीट नहीं चेंज कर सकते हैं, but they can just bend over and talk to the next person. They can move and pass something to the next person or even go to the desk of next person. इतना फ्रीडम होता है क्योंकि जगह है। तो ये लिक्विड का केस हो गया। इन केस ऑफ गैसेस देयर इज टू मच फ्रीडम, दे आर जस्ट सिटिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ क्लास, सो दे कैन फ्रीली रोम अबाउट। टीचर नहीं है तो देख लीजिए दौड़ भाग शुरू मचाए हुए चाहे पूरे क्लास में। तो दे हैव कंप्लीट फ्रीडम टू मूव अबाउट इन द क्लास। क्लास बंद है, क्लास खुला हुआ है, टीचर नहीं है, कोई दूर दूर देखने वाला, निकल के भाग जाएंगे प्लेग्राउंड में कि चलो खेल ही आते हैं जब तक। सो सिमिलर इज द केस ऑफ गैस। इफ दे फाइंड अ वे आउट ऑफ ए कंटेनर, दे विल जस्ट रन अवे। लिक्विड, if you are keeping this liquid in this bottle, even if we are opening the mouth of this bottle, liquid is staying inside, it is not running. Okay, it is still here, but इतना है कि इसको हम छोड़े हुए हिला रहे हैं, डुला रहे हैं, तो ये अपने आसपास में मूव कर रहा है। ओके, इट कैन मूव अबाउट। इसी बॉटल में रहेगा लेकिन हाँ, इट कैन मूव अबाउट। खोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि भाग जा रहा है, हिलाएंगे छलक रहा है। बट गैस, इफ यू आर कीपिंग अ गैस इन अ बॉटल एंड इफ यू ओपन इट, इट विल मूव अबाउट, इट विल कम आउटसाइड और इस रूम में भर जाएगा। और इस रूम से भी खुला कोई जगह है, आप पूरा अगर खिड़की वगैरह खुला है तो पूरे चारों तरफ आकाश में फैल जाएगा। सॉलिड, आप सॉलिड, ये पेन है सॉलिड, ये रखा हुआ है खुले में। Is it running away anywhere? Is it changing its shape or space? No. Understood? So ये इस तरह का समझ लीजिए, ये आपके सामने सॉलिड रखा हुआ है एग्जाम्पल, ये लिक्विड रखा हुआ है, और गैस, इस रूम की गैस तो है ही, ये इस रूम में जो एयर है, टेक इट एज गैस। तो हवा है, फ्रीली आ रही है, जा रही है, जहां जगह है वहां है, कोई बंधन नहीं है अगर खुला हुआ है कंटेनर तो। सो व्हाट हैपेंस व्हेन वी हीट, जब एनर्जी देंगे, जैसे इसको है, हिला रहे हैं, डुला रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है? नाउ इट कैन मूव, इट कैन मूव। ओके, इसको हिला रहे हैं, ये भी मूव कर रहा है, लेकिन अभी बॉटल से बाहर नहीं जा रहा है। गैस को जो है वो तो पहले ही से फ्री है, और हीट कर दीजिएगा तो पागल की तरह भागना शुरू कर देगा। ओके, सो बेसिकली व्हेन वी गिव हीट, व्हेन वी हीट, और हीट क्या है? यू नो दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो व्हेन वी हीट एनीथिंग, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, और हीट करने का मतलब समझ लीजिए, क्लास में आपने म्यूजिक बजा दिया, तो बच्चे जो पैक हैं फिर भी म्यूजिक पर झूमना शुरू कर देंगे। देखे कि अरे भाई सर म्यूजिक बजा दिए हैं, तो अभी तो इंटरटेनमेंट का क्लास है, तो हम लोग थोड़ा एंजॉय कर लें। तो दे विल स्टार्ट मूविंग, हमिंग,
गाना गुनगुनाना और झूमना शुरू कर देंगे। और ज़्यादा आपने लाउड म्यूज़िक लगा दिया और बढ़िया उनके पसंद का सॉन्ग लगा दिया तो उठ के डांस भी करने लगेंगे। दे विल स्टार्ट डांसिंग। और आपने ज़्यादा कर दिया फ्रीडम, देखा कि सर नहीं लगा के चले गए तो फिर भागने लगेंगे क्लास में इधर उधर चारों तरफ, डांस करने लगेंगे आपस में। सेम इज द केस ऑफ सॉलिड। सॉलिड को जब आप हीट करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं जो पहले चुपचाप टाइटली बंधे हुए थे एक दूसरे से, वो थोड़ा हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। ओके, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर तो फिर वो क्लास की में बच्चों की तरह वो थोड़ा दूर दूर भागना शुरू कर देंगे। ओके, और फिर वो क्या होगा कि अपना जहां मन होगा इसके साथ वहां जाके नाच रहा है, वहां बैठ रहा है, वो फ्री हो जाएंगे विद इन द क्लास। विद इन द क्लास दे विल गो एंड सिट विद देयर फ्रेंड, कहेंगे अरे यहाँ बेकार बोरिंग के बगल में बैठा हुआ था, मैं फ्रेंड के साथ जाके एंजॉय करूँगा। तो वो अपने फ्रेंड के साथ जाके बैठ जाएगा। जो आगे था वो पीछे चला जाएगा, जो पीछे था बोला बहुत पीछे बैठे, थोड़ा आगे बैठ के दोस्त के साथ गप करते हैं, वो आगे, मतलब दे विल चेंज देयर प्लेस, दे विल, बिकॉज दे हैव मोर फ्रीडम नाउ, दे हैव बीन गिवन सम एनर्जी बाय द टीचर कि ओके। हम लोग को सीट चेंज करना अलाउड नहीं था, कोई सीट चेंज कर लिया तो टीचर विल पनिश, जहाँ बैठ गए वहीं बैठना है। ओके, वी कुड नॉट, लगता था कि अरे अपने फ्रेंड के बगल में बैठे कभी गप मार लिया करेंगे 2-4 मिनट, सर नहीं आएंगे तो। वी वर नॉट अलाउड टू डू सो, वी हैड वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉर सीटिंग। बट जब टीचर ने फ्रीडम दे दिया तो ओके भाई ठीक है, जिसको जहाँ बैठना है, म्यूजिक चल गया तो डांस कर रहा है, तो विद इन द क्लास दे आर फ्री टू मूव अबाउट, दे आर फ्री टू गो टू वट एवर फ्रेंड दे वांट and they can enjoy with them, they can sit with them. तो same is the case of solid. Understood? लिक्विड जो है, जो पहले से ही गैप है, उसको आप एनर्जी दीजिएगा तो वो भागना क्लास में पहले इधर उधर चारों तरफ, अभी जो 2-2 सीट आपस में बैठ रहा था, मूव कर रहा था, वो जाने लगेगा कॉर्नर, जहाँ दूर दूर अपने फ्रेंड के पास जाना शुरू कर देगा। और उससे ज़्यादा एनर्जी दीजिएगा तो फिर वो क्लास से भागने की कोशिश करेगा। और जो पहले से कॉर्नर्स पर है उसको आप फ्रीडम दीजिएगा तो वो तो कहेगा हम पहले ही से, हम तो फ्री है इतना, अब तो क्लास से ही भाग जाते हैं, तो ही विल रन अवे फ्रॉम द क्लास। अंडरस्टूड? दिस इज व्हाट हैपेंस टू सॉलिड, लिक्विड, गैस। एज वी हीट देम तो देयर पार्टिकल्स दे गेट एनर्जी एंड दे हैव मच मोर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, दे स्टार्ट मूविंग, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। अब वाइब्रेट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं। उतना ही फ्रीडम है, तो जितने दूर का फ्रीडम है उतना इधर जाएंगे, फिर लौट के उधर जाएंगे, इधर आएंगे, इतना ही कर सकते हैं, और तो कोई जा नहीं सकते हैं। अब ये फ्रीडम जितना बढ़ता जाएगा उतना दायरा उनका बढ़ता जाएगा, और ज़्यादा मिलेगा तो और दूर दूर तक होके आएंगे चारों तरफ जो है। ओके, so as we increase the energy, their kinetic energy increases, their vibration increases. This is what happens. Okay, तो पहले जो सॉलिड था, आप देखिए पहले जो सॉलिड था, सॉलिड की पहचान क्या है? द क्लास फुल ऑफ स्टूडेंट, द क्लास फुल ऑफ स्टूडेंट सिटिंग साइलेंटली विथ पैक्ट वन टू अनदर। लिक्विड की पहचान थी कि दे आर ऑल्सो सिटिंग but they are sitting with some gaps in between them. And gas की पहचान क्या थी कि they are sitting quite far and they can easily move near their locality. तो अब जब आपने एनर्जी बढ़ा दिया, when you heated the solid, तो उनको काइनेटिक एनर्जी मिल गया, वो थोड़ा फ्रीडम मिल गया, तो अब वो अपने आसपास थोड़ा छोड़ छोड़ के इधर उधर क्लास में फैल गए। तो अब किस में कन्वर्ट हो गए? लिक्विड वाले स्टेट में आ गए। जब वहाँ उनको थोड़ी फ्रीडम मिल गई, अपना इधर उधर जा सकते हैं, जो है अपने अगल एक नेक्स्ट छोड़ के दोस्त से बातचीत कर सकते हैं, उसके डेस्क पर जा सकता है। तो सॉलिड से अब किस में आ गया? लिक्विड में आ गया। और मैंने आपको बताया कि जो लिक्विड है उसको हीट करेंगे तो उसको और ज़्यादा फ्रीडम हो जाएगा, तो वो किस स्टेट में चला जाएगा? गैस के स्टेट में। कि भाई वो तो पहले से गैप था उसके बीच में, उसको आपने और एनर्जी दे दिया तो वो चारों तरफ अपने क्लासरूम में भागना शुरू कर देगा।
तो लिक्विड को हीट कीजिएगा तो गैस स्टेट में चला जाता है। और गैस जो पहले से ही फ्री है उसको आपने हीट किया तो क्या करेगा, क्लासरूम छोड़ के भाग निकलेगा बाहर कि चलो प्लेग्राउंड में खेलते हैं, जहाँ खुला मिलेगा वो तो मनमौजी है। म्यूजिक बजा दी, बोला आज छुट्टी, आज तो पूरा शहर चौकस करेंगे, घूमेंगे। So same is the case of gas. If you heat it, it escapes, and whatever free space is there, it will move about and more and more. और वो क्या करेगा, ये तो खाली बच्चे घूमेंगे आपस में, और गैस वाले क्या है, जो फ्रीडम वाले पहले से उनको फ्रीडम मिला हुआ है, बिगड़े होते हैं, वो बाइक से उधम करना शुरू करेंगे पूरे शहर में कि आज छुट्टी मिल गई है, पूरे शहर में बाइक दौड़ाएंगे। तो सेम इज केस ऑफ गैस। So you understood that when solid is heated, it converts to liquid. और ज़्यादा एनर्जी दीजिएगा और फ्रीडम दीजिएगा तो वो क्या है, वो पूरे क्लास में भागना सब शुरू कर देंगे, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो सॉलिड से फर्स्ट लिक्विड और लिक्विड से गैस, और लिक्विड जो पहले ही है वो तो गैस, और गैस से भी क्या होगा कि और गर्म कीजिएगा तो फिर वो भी खुले में भाग जाएगा। ओके, अंडरस्टूड व्हाट हैपेंस? ओके, now we will write on increasing the temperature, on increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increases full stop ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए ये भी आपसे पूछा गया है और पूछा जाएगा कि व्हेन वी हीट एनी ऑब्जेक्ट व्हाट इंक्रीजेज, वहां लिख देगा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर, यस यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज काइनेटिक एनर्जी विच इंक्रीजेज। यही सबसे पॉइंट बनता है ऑब्जेक्टिव। हाँ हाँ, पार्टिकल इंक्रीजेज फुल स्टॉप ड्यू टू इन, हाँ फुल स्टॉप, ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी the particles energy comma the particles start vibrating with greater speed with greater speed full stop, the energy supplied by heat overcomes the force of attraction between the particles।
full stop. The particles, ink finished. फिलअप कर लीजिए, है ना. और लीजिए. डालिए उसमें. डालिए डालिए, वो अपने आप नज़र आएगा, ऊपर आएगा, उसको ऊपर देखते रहिए, भरते रहिए. ठीक. पहले थोड़ा सा उसमें लगा लीजिए, उसको खुला रखिए. हाँ हाँ, उसको पहले थोड़ा सा कसिए, उसको थोड़ा सा पहले खाली लगाइए. हाँ, थोड़ा सा लगाइए, फिर उल्टा कर लीजिए, उसको पेन को उल्टा कर लीजिए और उसमें कसते जाइए. हाँ, सीधा करके उसमें इंक निकल जाएगा अपना. जो एक्सेस होगा निकल जाएगा. ठीक है ठीक है, वो आ जाएगा. टच कर दीजिए किनारे उसका, तो उसमें निकल जाएगा. थोड़ा सा खोल के फिर से. हाँ, कर लीजिए. चलिए, हो गया. ठीक है, वो लिखने में आ जाएगा अपने आप. हाँ, चलिए, ओके. इसको खाली कैप बंद कर दीजिए. ओके. Between the particles, full stop. The particles leave their fixed positions. leave LEAV. live नहीं, ये live होता है, वो leave बोला. leave their fixed positions and start moving more freely. And start moving more freely. Full stop. A stage a stage is reached when the solid melts and is converted
to a liquid full stop. The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point. Its melting point. Full stop. ओके, यहाँ एक स्टार मार्क करके पॉइंट लिख लीजिए. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड, द मेल्टिंग पॉइंट of a solid indicates the strength of force of attraction between its particles. Between its particles. Full stop. Okay. Right. The melting point of ice, आप नॉर्मल में लिख दीजिए. हाँ, ये पॉइंट यहीं ख़त्म हो गया, फिर वैसे कंटिन्यू कीजिए. द मेल्टिंग पॉइंट of ice is 0 degree Celsius or 273.15 डिग्री केल्विन. के लिख दीजिए. हाँ, के फुल स्टॉप. ठीक है, तो केल्विन स्केल होता है टेम्परेचर का, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसके बराबर होता है 273.15. इतना ही डिफरेंस होता है, यानी जो भी टेम्परेचर सेल्सियस में है उसमें आप 273.15 जोड़ देंगे तो वो केल्विन स्केल में आ जाएगा. 0 है तो 273.15. अंडरस्टूड. हाँ, तो केल्विन स्केल जो एसआई स्टैंडर्ड जो है वो ये है आपका केल्विन बोलते हैं टेम्परेचर के लिए. ठीक है, सेंटीग्रेड या सेल्सियस जो है ये एसआई यूनिट नहीं है. एसआई यूनिट जो है टेम्परेचर का आपका लिख लीजिए यहाँ पर चाहे तो. द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. KELVIN. KELVIN.
LVIN, शॉर्ट में कैपिटल के लिखते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, केल्विन जो है ये कैपिटल के ऐसे लिखते हैं, ठीक है। केजी जब आप लिखते हैं ऐसे नहीं लिखेंगे, इट विल बिकम रॉन्ग। केजी जो लिखा जाता है उसमें के इस तरह से लिखा जाता है, कैपिटल के नहीं, हाँ स्मॉल के लिखा जाता है, कैपिटल है, ठीक है। तो ये केजी लिखना रॉन्ग है, मैथ्स वगैरह में लिख देते हैं, छोटे क्लास में बच्चे चल जाता है, बट आफ्टर 10th इट इज टेकन एज रॉन्ग। के जो है स्मॉल, कैपिटल के जो है इट इज अ सिंबल ऑफ केल्विन। Okay. Now let us understand this. बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे और ये इससे सवाल आता है, हमेशा आता है, आएगा भी, और यहीं बच्चे फंस जाते हैं, समझ नहीं पाते। सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ द change of state of matter takes place, why it changes and how it changes. In that we are first studying the effect of increase of temperature, या effect of temperature on the state. So we wrote that, देखिए, on increasing the temperature of solids the kinetic energy of particle increases. जैसा आपको एक्सप्लेन किया था क्लासरूम का एग्जाम्पल देके कि जब हम सॉलिड्स का को हीट करते हैं यानी उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वी इंक्रीज द टेम्परेचर, द काइनेटिक एनर्जी यानी एनर्जी ऑफ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। हाँ, नहीं हर जगह होता है, आपने लिखा ही है ना वहाँ, टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स। ओके, किसी में भी होता है, ऐसा नहीं कि सॉलिड में, सब में होता है। सो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो मूवमेंट का एनर्जी होता है वो बढ़ता जाता है, यानी उनका मूवमेंट, और आपको पता है कि मास तो कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला आपको पता है, हाफ mv² होता है। सो मास जब कांस्टेंट है तो वेलोसिटी बढ़ेगा यानी स्पीड बढ़ जाती है। तो जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया सॉलिड का या किसी भी मैटर का, तो उसके पार्टिकल्स जो है उनका एनर्जी बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। मूवमेंट और एनर्जी, यहाँ बोलेंगे एनर्जी कई तरह के होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल और भी, तो यहाँ पर मूवमेंट का एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि वो ज़्यादा स्पीड से मूव करना शुरू कर देते हैं, और आपको इतना पता है कि जब वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं तो वो एक ही साइड तो मूव करेगा नहीं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, एक तरह से रस्सी बंधी हुई है गाय के गले में। अब गाय कहाँ तक जा सकती है, जहाँ तक रस्सी है, जितनी दूर लंबी गले में रस्सी बंधी हुई है उतना ही वो मूव कर सकती है। तो उसी तरह हर पार्टिकल एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है, तो उतनी दूर में एक साइड जाएगा फिर दूसरी साइड जाएगा, यानी वाइब्रेशन होगा एक स्प्रिंग की तरह इधर उधर। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं जैसे उनको एनर्जी दिया जाता है, हीट किया जाता है। ओके, तो ये क्या होता है कि मैंने आपको बताया था, सारा एग्जाम्पल दिया अभी आपको, क्लासरूम का एग्जाम्पल दिया कि जहाँ बच्चे बहुत नज़दीक बैठे हुए हैं लेकिन उनको आपने एनर्जी दिया, छूट दिया, म्यूज़िक बजाया, तो वो थोड़ा आपस में अपने ही सीट पर है लेकिन इधर उधर अपने अगल बगल वाले के पास मतलब झुकने लगे, डांस झूमने लगे, उनमें एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। और मैंने आपको समझाया कि जब और एनर्जी दीजिएगा और छूट दीजिएगा तो वो क्या है, फिर एक दूसरे के डेस्क पर आना जाना अगल बगल वाले के शुरू कर देंगे, उसके साथ जाके झूमने। तो इसी तरह यहाँ जब हम और एनर्जी देते हैं, पहले तो वो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर उसको और ज़्यादा एनर्जी देंगे तो क्या होगा, वो और ज़्यादा
फिर उसका दूरी बढ़ जाएगा वाइब्रेशन का, ठीक है, यानी वो दूर दूर तक आने जाने लगेंगे। तो अपने फिक्स्ड पोजीशन जो था उसको छोड़ के वो दूर दूर तक क्लास में आने जाने लगेंगे। ओके, सो दैट वी हैव रिटर्न कि द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट, ठीक है, देख रहे हैं, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स के बीच में जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उनको अपने अपनी जगह पर बांधे हुए है, उससे ज़्यादा हो जाता है एनर्जी, और वो क्या है कि अपनी जगह छोड़ के फिर इधर उधर घूमना, दूसरे के डेस्क पर जाना शुरू कर दे। लेकिन अभी नज़दीक वाले के जाएंगे, अभी अपने जो अगल बगल वाले डेस्क हैं उनके डेस्क तक चले जाएंगे अपनी सीट छोड़ के। अब इससे ज़्यादा आप एनर्जी देंगे और तो मैंने बताया कि फिर वो दूर दूर कॉर्नर वाले डेस्क तक भी जाने लगेंगे और फिर धीरे धीरे पूरे क्लास में वो झूमने लग जाएंगे, इंजॉय करने लग जाएंगे। उसी तरह यहाँ होता है, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी जो एनर्जी उनको हीट से मिलती है वो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ज़्यादा हो जाता है, तो वो अपना दे लीव देयर फिक्स्ड पोजीशंस एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। अपना जो फिक्स्ड एक ही जगह बंधे हुए थे उस जगह को अब वो छोड़ के इधर उधर अपने आसपास झूमना शुरू कर देते हैं। A stage is reached when the solid melts and is converted to a liquid। मैंने बताया कि जब वो इतना उनको जगह मिल जाता है कि वो एक दो डेस्क छोड़ के अपने आसपास और उसके नेक्स्ट पड़ोसी तक भी जाने लगते हैं बच्चे, तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है कि लिक्विड स्टेट में इतनी फ्रीडम होती है। तो अब वो स्टेट उसका चेंज हो जाता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो इसको कहते हैं मेल्टिंग, मेल्ट कर जाता है। A stage is reached when the solid melts। तो सॉलिड अब जो एक जगह खड़ा था, सॉलिड क्या है, मान लीजिए इतना बड़ा चीनी का टुकड़ा है, खड़ा है, उसमें हर उसका पार्टिकल अपनी अपनी जगह फिक्स्ड है, डोल रहा है, इधर उधर जा रहा है नहीं। लेकिन जब आप गर्म कर रहे थे तो धीरे धीरे अंदर कुल बुलाना शुरू किया था, और धीरे 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 जब उसका फ्रीडम बढ़ता गया, हीट आप देते गए, तो वो धीरे धीरे और आसपास अंदर जाना शुरू किया, तो धीरे धीरे वो अब लिक्विड पिघलना शुरू हो जाएगा और लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। लिक्विड स्टेट में आने का मतलब है कि तब उसके पार्टिकल्स की एनर्जी इतनी हो जाएगी कि वो 2-3 डेस्क दूर तक अपना जो है फ्रीली आ जा सकता है, डोलना शुरू कर देगा, घूमना शुरू कर देगा। सो इसको क्या लिखा कि द मिनिमम टेम्परेचर, देखिए यहाँ, द मिनिमम टेम्परेचर at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point। melting point underline करेंगे। तो melting point क्या होता है, the minimum temperature at which a solid melts and converted to liquid at atmospheric pressure। अब यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, यानी खुले हवा में बात हो रही है, ठीक है, खुली हवा में जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, जो नॉर्मल प्रेशर कहा जाता है, उस प्रेशर में जिस मिनिमम टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को वी कॉल इट एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। हाँ हाँ, आप उसको ज़्यादा प्रेशर भी दे सकते हैं या कम प्रेशर भी दे सकते हैं, तो ऐसे में उसका टेम्परेचर वो चेंज हो जाएगा। तो ये जितने भी हम एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं ये एटमॉस्फेयर प्रेशर या खुले, हाँ हाँ, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उसका हम वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि खुली हवा में, जैसे खुली हवा में, और आप जो है बर्फ़, जैसे एग्जांपल हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि बर्फ़ लिया और उसको गर्म करना शुरू किया, हवा खुली हुई है तो हवा का नॉर्मल प्रेशर जो होता है इस नेचर में वही प्रेशर है। तो जिस मिनिमम टेम्परेचर पर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड, उसको हम उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। देखिए आपको क्या बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है।
ये फोर्स मैंने बताया कि सॉलिड में बहुत मजबूत होता है, इसलिए बिल्कुल एक दूसरे से जकड़े रहते हैं, जैसे सिक्कड़ में बंधे हुए हैं, हिल नहीं सकते हैं। लिक्विड में क्या है कि थोड़ा छूट है, वो थोड़ा बहुत ढीला चेन बांधा हुआ इधर उधर जा सकते हैं। हाँ, नहीं अट्रैक्ट ही करेंगे, रिपेल नहीं करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा, लेकिन इतनी मतलब मजबूती से नहीं बंधे हुए जुड़े हुए हैं, थोड़ा फ्रीडम है, अपना घूम सकते हैं अपना, मैंने 1 फुट का रस्सी छोड़ा हुआ है तो वहां तक वो अपना जा सकते हैं इधर उधर। ठीक है, जैसे आपने कभी फिल्म देखा होगा, एक प्रिजनर कैदी होता है, उसको ऐसे हाथ पैर फैला के बांधा हुआ रहता है, वो हिल भी नहीं सकता है, वो हिल भी नहीं सकता क्योंकि उसके पैरों में और हाथ में जो है वो जंजीर बंधे हुए हैं, बिल्कुल वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। ये केस हो गया सॉलिड का, एक दूसरे को पकड़ रखा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, वो हिल भी नहीं सकता है। लिक्विड में आपने देखा होगा कि पैर में चेन बंधा हुआ है और 2-3 फुट छोड़ा हुआ है नीचे ढीला, तो वो अपने जो चैम्बर है उसमें इधर उधर बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी मूव कर सकता है। जितनी लंबी उसकी चेन है उतना दूर तक वो, गाय वगैरह बंधी होती है देखते हैं आप रस्सी से, वैसे ही अपना जितना दूर बंधा हुआ है रस्सी उतना दूर मूव कर सकता है। ये केस हो गया लिक्विड का। और गैस का केस है कि उसको कमरे में खुला छोड़ा हुआ है, कमरे में खुला छोड़ा हुआ है, वो अपने कमरे में कहीं भी आ जा सकता है, और खोल दीजिएगा दरवाजा कहीं गलती से तो वो कमरे से बाहर भाग जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, तो जब आप हीट देते हैं तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा होने लगता है, उसको उससे उस पर विजय प्राप्त करने लगता है, और वो जो है फ्री होने लगता है, यानी कि इधर उधर घूमना शुरू कर देगा। और फ्रीडम, जो पहले टाइट ऐसे बंधा हुआ था उसका आपने कमज़ोर कर दिया, हाथ कड़ी लंबा ढीला छोड़ दिया, तो धीरे धीरे वो मूव करना शुरू कर देगा। तो इसी की बात किया जा रहा है कि स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। तो एक स्टेज आता है जब सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होकर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और वो उसके पार्टिकल्स अपने आसपास आराम से मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो सबसे हर केस में होता है जहां भी, हाँ हाँ, जैसे सॉलिड में ही फिक्स्ड पोजीशन है ना, लिक्विड में तो पहले ही से मूव कर रहा है। मैंने तो क्लास का एग्जांपल देके सब समझा दिया आपको, बच्चों का एग्जाम्पल देके समझा दिया कि जो एक के बाद एक करके बैठे हुए हैं उनको अगर फ्रीडम मिल गया तो पहले अगल बगल जाना शुरू करेंगे, यानी अब वो सॉलिड से लिक्विड में आ गए। हाँ, और ज़्यादा अगर आप दीजिएगा तो वो क्लास में चारों तरफ भागना शुरू कर देंगे, अब वो गैस में बदल गया। और कहीं अब इसके बाद एनर्जी छूट दीजिएगा और दरवाज़ा खोल दीजिएगा तो वो इससे बाहर भी चले जाएंगे। हाँ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। तो पहले जो सॉलिड है, सॉलिड को जब हम हीट देते हैं वो मेल्ट करता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसके पार्टिकल्स में फ्रीडम थोड़ा मिल जाता है अपने अगल बगल तक गप सप करने का। तो ये जो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर ये होता है, यानी उससे ज़्यादा टेम्परेचर दीजिएगा तब तो होगा ही है, उससे ज़्यादा छूट दीजिएगा तो होगा ही, लेकिन सबसे कम टेम्परेचर जिस पर ऐसा हो जाता है उसको हम, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस पर जब कोई सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। दिया नहीं जाता है, वो तो जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो है। अब उसका यूनिट वगैरह में जाएंगे बाद में, बार में और पास्कल में उसका वैल्यू होता है। ऐसे 1 बार हम बोलते हैं, स्टैंडर्ड हमने मान लिया एटमॉस्फेयर का प्रेशर को, स्टैंडर्ड मान लिया कि यही प्रेशर स्टैंडर्ड है, तो उसको 1 बार कहते हैं। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम 1 बार बोलते हैं, बार। तो आगे आएगा। तो अभी आपने जो है क्या समझा, मेल्ट कैसे करता है सॉलिड और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। द मिनिमम टेम्परेचर, क्योंकि आप हीट कर रहे हैं तो जो एक मिनिमम टेम्परेचर आएगा बढ़ते बढ़ते कि वहाँ से पिघलना शुरू हो जाएगा, उससे ज़्यादा होगा तब तो पिघलेगा ही, उससे कम पर नहीं पिघलेगा। समझ गए? तो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड, ठीक है, तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स
मेल्टिंग पॉइंट। और इसमें आपको आगे बताया कि जैसे आइस है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन, यानी कि इस टेम्परेचर पर आइस जो है वो मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। लिखिए, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग that is वर्ड्स में that is change of solid state into liquid state is also known as fusion. FUSION, फ्यूजन। तो मेल्टिंग को ही फ्यूजन भी कहा जाता है। तो कॉमन वर्ड है मेल्टिंग, जो है थोड़ा सा साइंटिफिक वर्ड, दोनों वर्ड यूज होते हैं, फ्यूजन भी। तो अगर फ्यूजन लिखा रहेगा खाली फ्यूजन तो समझ जाना वहाँ कि पिघलने की बात हो रही है, मेल्टिंग की बात हो रही है, ध्यान रहेगा। हाँ, नाउ अब देखिए, अब एक बात को गौर करेंगे कि अभी हमने समझा कि जब हम हीट करते हैं किसी सॉलिड को तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है और धीरे धीरे जब मेल्टिंग पॉइंट का बराबर टेम्परेचर हो जाता है तो वो पिघलना शुरू हो जाता है, एंड इट मेल्ट्स। उस समय उसको जब हम और हीट करते हैं, हीट तो दे रहे हैं लगातार, उसको गर्म कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। उससे पहले मेल्टिंग पॉइंट से पहले तक टेम्परेचर बढ़ रहा था, जैसे जैसे आप हीट कर रहे थे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा था, ठीक है। लेकिन जब उसका मेल्टिंग पॉइंट आ गया उसके बाद कुछ थोड़ी समय के लिए उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। जब मेल्टिंग पॉइंट आ गया यानी जब वो मेल्ट करना शुरू कर दिया, उस समय उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है थोड़े देर के लिए, जबकि आप हीट कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। जैसे क्या होगा, आप देखे हैं, आप अगर देखे होंगे इस तरह के किसी बर्तन में आपने बर्फ के टुकड़े रखे हुए हैं, ओके, तो इसको आप हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, सबसे पहले निचला का लेयर आप देखते हैं कि वो थोड़ा सा पानी पानी होना शुरू हो गया, पिघलना शुरू हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि गर्म तो कर रहे हैं लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। माने 0 डिग्री पर था अगर पहले, तो 0 डिग्री से बढ़ना शुरू हुआ, या 0 नहीं मानते हैं क्योंकि 0 पर तो ये मेल्ट ही होता है। मान लीजिए कि आपने फ्रिज में रखा हुआ था, वहाँ -10 डिग्री था, उस बर्फ को निकाल के आपने गर्म करना शुरू किया तो ये 10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस पर ये पिघलना शुरू हो गया। लेकिन अब आपने जब इसको हीट किया और तो इसका टेम्परेचर बढ़ा नहीं बल्कि ये 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, लेकिन ये बर्फ धीरे धीरे पिघलता जाएगा, ठीक है। तो इस समय जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा है, तो आखिर हीट जा कहाँ रही है? क्योंकि आपको पता है हीट देके किसी चीज को
तो उसका टेम्परेचर बढ़ना है। कोई बता देगा कि गर्म कीजिएगा तो गर्म होगा, ज़्यादा गर्म होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब गर्म कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है, इस बात को समझेंगे। हैं? नहीं, वेपोराइज नहीं हो रहा है। तो ये तब तक नहीं इसका टेम्परेचर बढ़ेगा जब तक पूरी बर्फ जो है पिघल ना जाए। ठीक है, पूरी बर्फ जब तक न पिघल जाए तब तक ये टेम्परेचर इसका इतना ही रहेगा। जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी, पानी में बदल जाएगी, तब फिर उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके, राइट। When a solid melts, when a solid melts, its temperature remains the same. Its temperature remains the same till all the ice एक मिनट, till all the solid gets converted into liquid. अच्छा, अब यहाँ देखिए। हाँ, मैंने आपको जैसे यहाँ बताया कि आइस रखा हुआ है, तो पहले खाली निचला लेयर थोड़ा सा पिघलना शुरू करेगा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसको और आप हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर इसका अभी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा जब तक ये पूरा जो आइस है वो धीरे धीरे पिघल ना जाए। जब एक बार पूरा आइस पिघल जाएगा लिक्विड में, उसके बाद फिर उसका टेम्परेचर 0 से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ओके, हाँ, ठीक है, फुल स्टॉप। दिस हीट is used in changing the state from solid to liquid state by overcoming the force of attraction between the particles full stop as this heat energy is absorbed by ice without showing
WING, without showing any rise in temperature comma, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as the latent heat LATENT हीट, इसको डबल कोट्स और अंडरलाइन करें। फुल स्टॉप अंडरलाइन कर। तो देखिए यहाँ मैंने आपको बताया कि जो टेम्परेचर इसको हीट कर रहे हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस जब आ गया, वहाँ के बाद जब हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, ये आइस लेकिन धीरे धीरे मेल्ट कर रहा है, और जब ये पूरा मेल्ट हो जा रहा है उसके बाद फिर टेम्परेचर इसका बढ़ना लगता है। तो आखिर ये इतने देर जो 0 डिग्री स्टार्ट हुआ था और वहाँ से लेके जब तक पूरा आइस मेल्ट किया, उतना जो इसमें हीट गया वो गया कहाँ? Where did that heat go? Where did that energy go? So that energy is actually used in melting this ice or changing the state from solid to liquid. क्योंकि आपको पता है कि सब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, जब उसको आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा कमजोर करेंगे तब ना वो फ्री होगा इधर उधर मूव करने के लिए। तो इसका मतलब कि जो हम हीट दे रहे थे उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो वीक करने में यूज हो जाता है, वो ढीला कर देता है उसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो अब वो उसके पार्टिकल्स फ्री हो जाते हैं अपने आसपास मूव करने के लिए। तो इसके वजह से उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन सब को फ्री करने में, यानी उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवर करने में इस हीट एनर्जी का इस्तेमाल होता है। इस वजह से वहाँ कोई चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं दिखता है। एक बार फ्री हो गए यानी वाटर में कन्वर्ट हो गए, उसके बाद आप टेम्परेचर उसका हीट देंगे उसको, तो फिर उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब वो फ्री हो चुके हैं। वो फिर अपने, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि क्लासरूम में बच्चे अपने अगल बगल के सीट पर भाग रहे हैं दौड़ के, और एनर्जी दीजिएगा तो फिर वो चारों तरफ भागना शुरू कर देगा क्लास के अंदर, यानी क्लास का माहौल और शोर शराबा बढ़ता जाएगा, एनर्जी बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो ये जो हीट होता है जो देने पर भी पता नहीं चलता है, लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ। हाँ, जो दिखे नहीं, जिसको आप जान नहीं पाए, अप्रत्यक्ष होता है, जो आंखों से परे। इनविजिबल भी कहते हैं। तो ये जो हीट हुआ, तब से आप थर्मोमीटर लगाए हुए थे, वो बता रहा था कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन जब 0 डिग्री सेल्सियस आया, आइस मेल्ट करना शुरू किया, उसके बाद से 0 डिग्री कई देर तक आप जो है उसको हीट करते रहे। मैंने पता चलेगा कि अगर एक बड़ा आइस क्यूब है उसको आप हीट कर रहे हैं तो 1 घंटा तक पता चलेगा हीट हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आई बात? तो इस हीट को जो जिसका कोई हमें जवाब पहले नहीं सूझता था कि कहाँ चला गया, गायब हो गया, कहाँ चला गया, गुमशुदा हो गया, उस हीट को हमने नाम दिया गुमशुदा हीट, लेटेंट हीट।
ठीक है, जिसका कोई पता नहीं चलता है सामान्य आदमी को कि कहाँ चला गया, इसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। और आपको इसका कारण बता दिया कि क्यों गुमशुदा हो गया, क्योंकि वो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको वीक करने में उससे कुश्ती लड़ता है वो, कि भाई ढीला छोड़ो ढीला छोड़ो, तो उसमें उसकी एनर्जी चली जाती है, थक जाता है वो, और उसका एनर्जी का कोई पता नहीं चलता। दैट इज कॉल्ड लेटेंट। तो लेटेंट हीट आप समझ गए क्या होता है, ये वो हीट होता है जो एक किसी भी मतलब मैटर का स्टेट जब चेंज होता है तो उसके स्टेट को चेंज करने में जो यूज होता है एनर्जी, ये टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं यूज होता है। समझ गए फर्क? मेल्टिंग पॉइंट शुरू हो जाएगा और वहां से जब तक वो पूरा ना मेल्ट हो जाए उतनी देर का जो हीट है वो सिर्फ उसका स्टेट को चेंज करने में, कन्वर्ट करने में यूज हो रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा है वो। उसके बाद जो टेम्परेचर दीजिएगा वो चेंज ऑफ स्टेट नहीं करेगा, वो आपका उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो ये तो है लेटेंट हीट। अब ये किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, मेल्टिंग की बात कर रहे हैं। तो ये लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग की जगह फ्यूजन कहते हैं वर्ड, ठीक है। हाँ, लिख लीजिए, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। हाँ, क्या लिखे इससे पहले सेंटेंस पढ़ दीजिए। As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as latent हीट। लेटेंट हीट, आगे क्या लिखे आप? उसके बाद लिखेंगे दिस इज, हाँ, दिस इज कॉल्ड latent heat of fusion। और फ्यूज़न और मेल्टिंग में आप वो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, चाहे फ्यूज़न लिखे या कहीं मेल्टिंग पॉइंट लिख दे, एक ही बात है। लेटेंट हीट आप समझ गए क्या होता है, ये स्टेट चेंज करने में जिस हीट का यूज हो जाता है उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। गुप्त ऊष्मा हिंदी में या क्या कुछ कहते हैं उसमें स्टैंडर्ड वर्ड, यहाँ लेटेंट हीट कहते हैं। सो दिस वाज रिगार्डिंग फ्यूजन। अभी हम मेल्टिंग की बात पढ़ रहे थे। लिखिए आगे, इसमें लिख लीजिए, द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। means hidden, full stop। ओके, तो लेटेंट का मतलब होता है हिडन। लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, नेक्स्ट लाइन लिख लीजिए। हाँ, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change 1 kg of a solid into liquid into liquid at atmospheric pressure at its melting point
melting point is known as the latent heat of fusion. Latent heat of fusion. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या किए कि क्वांटिटी भी उसका स्टैंडर्ड 1 kg ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो आपको अभी समझाया उसी को लिखाया कि जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट यहाँ लिखा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, समझने की बात है कि आपने कहा कि सर वाटर है वो 0 डिग्री पर था, उसको तो हमें, या आइस था उसको तो हमें फ्यूज़न में यानी पिघलाने में इतना हीट लगा। तो यहाँ आपको यहाँ -10 से यहाँ ले जाने की बात नहीं हो रही है, समझे। पहले से ठंडा था तो वो तो पहले गर्म होगा, तब वो अपना 0 डिग्री पर आएगा, तब पिघलना शुरू करेगा। तो इसलिए यहाँ लिखाया गया कि एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जब वो मेल्टिंग पॉइंट है पहले से उसका, उस समय 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने पर जितना हीट रिक्वायर्ड होता है, और यहाँ प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ, क्योंकि अलग अलग फिर प्रेशर पर वो वैल्यू चेंज हो जाएगा हीट का। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ मेल्टिंग पॉइंट है। उस समय 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में जितना हीट लगेगा, उसको हम उस सॉलिड का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। यानी 1 kg उसको कन्वर्ट करने में सॉलिड को मेल्टिंग पॉइंट पर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कितना हीट लगेगा कि वो पिघल जाएगा पूरा। ठीक है, हाँ बना लीजिए, डेफिनेटली बना लीजिए। इसलिए बनाया आपको, जो डायग्राम्स बनाते हैं बोर्ड पर जनरली उसको ड्रॉ कर लिया करिए रिवाइज करने में आपको। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए। 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट लिखा तो है MMP मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पहले उसको मेल्टिंग पॉइंट पर हमें पहुंचाना है। अगर वो मेल्टिंग पॉइंट पर है तो अच्छी बात है, नहीं तो पहले मेल्टिंग पॉइंट पर एक बार जब आ गया और एटमॉस्फेरिक, उस समय
1 केजी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में जितना हीट लगेगा उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब जैसे पहले से मान लीजिए, अब वैक्स की बात करते हैं। मान लीजिए यहां बर्फ की जगह वैक्स, ठीक है, और मान लीजिए कि वैक्स का जो है वो 30 डिग्री टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट जो है 30 डिग्री है। 30 डिग्री पर मान लीजिए कि वो मेल्ट करना शुरू करता है, मेल्टिंग पॉइंट है, और पहले से जो है वो आप ठंडा उसको 0 डिग्री पर रखे हुए हैं। तो अब क्या होगा, पहले आपको तो उसको इतना गर्म करना होगा कि वो 30 डिग्री पर पहुंच जाए उसका टेम्परेचर, और जब 30 डिग्री पहुंच गया टेम्परेचर, उस समय अब और कितना टेम्परेचर हीट का ज़रूरत है ताकि वो जितना भी 1 केजी वैक्स है अगर, तो वो सारा का सारा मेल्ट कर जाए। नहीं तो जैसे 30 पहुंचेगा नीचे का थोड़ा सा परत खाली गर्म होगा, वो पिघलेगा, बाकी तो नहीं होगा। तो पूरा 1 केजी वैक्स को पिघलाने के लिए 30 डिग्री पर जितना हीट का ज़रूरत होगा उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वैक्स। आप यहां से नहीं जोड़ लेंगे कि सर 0 से तो हमको इतना टेम्परेचर गर्म करना पड़ा तब ना पिघला, नहीं, उससे मतलब नहीं है। पहले वो किस टेम्परेचर पर था उससे मतलब नहीं है। वंस इट हैज अराइव्ड एट मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग जो उसका टेम्परेचर है उस पर आ गया है, तो उस समय 1 केजी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट, अब बिल्कुल क्लियर हो गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, डाउट नहीं होगा कभी। चलिए नाउ ओके, तो अब यहाँ ध्यान देंगे कि जैसे हम आइस की बात ले रहे थे या वैक्स की बात ले रहे थे, अगर आइस की बात लें तो 0 डिग्री पर था यहाँ पर, और यहाँ भी जब पूरा वो मेल्ट हो गया तब भी 0 डिग्री सेल्सियस पर है। पहले जब हम आइस का केस देख रहे थे तो 0 डिग्री सेल्सियस जब मेल्ट होना शुरू हुआ, और 0 डिग्री सेल्सियस जब वो पूरा मेल्ट कर चुका यानी पूरा वाटर में आ गया, ठीक है, तो 0 डिग्री पर आइस भी है और 0 ही डिग्री पर वाटर भी है। पहले आइस था 0 डिग्री पर, उसको जब और हीट किया तो 0 डिग्री पर वाटर हो गया। तो इसका मतलब 0 डिग्री पर जो वाटर है उसमें ज़्यादा एनर्जी है 0 डिग्री के आइस से, है ना, उसी में ना एनर्जी गया, उसका एनर्जी बढ़ाने में हीट। तो लिख लीजिए 10 particles in water at 0 degree Celsius ब्रैकेट 273 केल्विन, 0.15। हाँ वो छोड़ देते हैं, ऐसे लिख लीजिए 273, खाली नंबर से चल जाता है काम। have more energy as compared to particles in ice, compared to particles in ice
in ice at same temperature फुल स्टॉप। ठीक है, तो यहाँ आपने इस एग्जाम्पल से देख लिया कि जब ये पूरे लिक्विड स्टेट में है, तो लिक्विड है तो मतलब ये कि उसके पार्टिकल्स में ज़्यादा एनर्जी है, सॉलिड है उसके पार्टिकल्स में कम एनर्जी है। पढ़ा ना आपने कि ऐसे भी आप जानते हैं कि सॉलिड से ज़्यादा एनर्जी किसके में होगा, लिक्विड में होगा। लिक्विड से ज़्यादा एनर्जी किसके पार्टिकल में होगा, गैस में होगा, क्योंकि वो ज़्यादा मूव करता है, फ्री होता है। लिक्विड कम मूव करता है, सॉलिड बिल्कुल पैक बंधा रहता है। तो यहाँ आप देखें कि 0 डिग्री पर जो वाटर है और 0 डिग्री पर जो आइस है, इन दोनों में किसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, आइस का ज़्यादा होगा, वाटर का ज़्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी वाटर का ज़्यादा होगा। ठीक है। क्योंकि वो लिक्विड है और सॉलिड हाँ, बहुत कम, सबसे कम सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। ठीक है, एक ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद